So today we're going to look into something very, very important that is on the heart of God. तो आज हम देखने जा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परमेश्वर के हृदय से है। I want you to turn with me to the book of 1 Timothy chapter 2, please. और चाहते हैं अपने बाइबल में निकालें सब पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय। 1 Timothy chapter 2. पहला तीमुथियुस उसका दूसरा And अध्याय। let's read from verse 1 onwards. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। I urge, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। You see the first point, write it down. अब देखते हैं पहला मुद्दा लिख You लीजिए। see, it is God's desire देखिए परमेश्वर की लालसा है that we must pray for all people. कि हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। All people. Why pray for all people? और सभी लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करना है? So that they would receive salvation. ताकि वे उद्धार को पा सकें। Can I have a good amen right क्या now? अच्छा मैं सुन सकते हैं हम इस वक्त? Look, are you listening, आप church? सुन रहे हैं कलीसिया? So you see, it is a will of God that, all men would be saved. तो आप देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि सभी मनुष्य को उद्धार मिल जाए। Every day, write it down. हर दिन लिख You लीजिए। must pray for your family members, those who don't know Jesus. हर दिन आपको अपने परिवार के उन सदस्यों के लिए Write it प्रार्थना down. करने की जरूरत है जो यीशु को नहीं जानते हैं। I'm giving you some points. So every day, like your auntie, your uncle, it's easy to criticize. Oh, they don't know the Lord and, they're very bad people. No, it is the desire of God that they would be saved. और देखिए किसी की निंदा करना बहुत आसान है कि ओ वो बहुत बुरे लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन देखिए परमेश्वर की दिली तमन्ना है कि हर एक इंसान को उद्धार मिल जाए। Come on, hallelujah. चलेगा हालेलुया। You see, the first thing is your family. तो आप देखते हैं पहली चीज जो है वो है आपका परिवार। How many of you are understanding कितना that? समझ रहे हैं इस You वक्त? see, Joseph, why God promoted him? आप देखते हैं यूसुफ को क्यों परमेश्वर ने उसको तरक्की दिया? Because he had a heart for his family. क्योंकि उसके पास उसके परिवार के लिए एक दिल था। He's saying, God, I don't want your blessing, your prosperity only for my life. उसने कहा कि प्रभु मुझे सिर्फ मेरी जिंदगी में आपके आशीष या समृद्धि की जरूरत नहीं है। He thought about his brothers. उसने अपने भाइयों के बारे में He सोचा, thought about his father. अपने पिता के बारे में And he सोचा। said, I need to do something for my family. उसने कहा कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खास करने की Did जरूरत the है। family look on him successfully? No, they hated him. क्या उसके परिवार ने उसको एक कामयाब व्यक्ति के रूप में देखा? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो उससे नफरत किया था। So don't think when you pray for your family, they will come and touch your feet. Thank you so much. You prayed for me. No, they may still speak rot about you. But let me tell you, your blessing comes from the Lord. देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते तो वो आप आकर आपके पांवों को चूमेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बेतुका बातें आपके बारे में कहेंगे ही, लेकिन फिर भी प्रभु से ही आशीषें आती हैं। See, it says, it is a thanksgiving be made for all people. Everyone say all people. देखिए वचन में लिखा है धन्यवाद ज्ञापन सब मनुष्य के लिए किए जाएं। The second thing दूसरी चीज, you pray is for the people in the church. आपको कलीसिया में के लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Come on, look at somebody and say in the church. किसी को देख रखा है कलीसिया में के। Just because you go to a garage does not make you a mechanic. देखिए बस क्योंकि आप किसी गैरेज में गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मैकेनिक बन गए। Come on now. You wear the clothes of a mechanic, put some grease over here like Arnold Schwarzenegger. You look like a mechanic, but you are not a mechanic. देखिए आप वहां जाकर मैकेनिक के कपड़े पहनते हैं, कुछ ग्रीस यहाँ लगा लेते हैं, तो इससे आप देखिए मैकेनिक नहीं बन जाते। Come on, कितने लोग सर? You can sleep in the garage, आप चाहे तो गैरेज में जाके सो सकते हैं, but you're not a mechanic. लेकिन फिर भी आप मैकेनिक नहीं बनते। In the same way, उसी तरह से just because you go to church, क्योंकि आप बस कलीसिया जाते हैं, come on, सुनिए, just because you are very close to the pastor, you smile at the pastor, you shake hands, you distribute some leaflets. देखिए आप पासवान जी के बहुत Christian. करीब हैं, No. उनके देखे मुस्कुराते हैं, कुछ लिफलेट भी आप बांटते हैं, तो इससे मतलब आप मसीह नहीं बन जाते। Sometimes, कभी-कभी many unsaved people are also there in the church. और बहुत सारे ऐसे लोग भी कलीसिया में होते हैं जिनको उद्धार नहीं मिला होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? Some of you are very good cooks. और आप में से कुछ लोग बड़े अच्छे खाना पकाते हैं। Food which is not cooked well जो खाना अच्छे से नहीं पकाया गया हो, cannot bless anybody. किसी को आशीष नहीं पहुंचा सकता। Come on, hallelujah. चले गए हालेलुया। जो खाना ठीक से पका नहीं है तो मुंह में डालते बोले यार कितना मजे से खाने का सोचा था। छा। Come on, hello, are you there? क्या साथ में हैं That's how unsaved people are in the church. वैसे ही जो उद्धार न पाए हुए लोग होते हैं कलीसिया में, So you must pray तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए daily. रोज। Father, every person attending our church, they would truly turn to the Lord Jesus आपको Christ. प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हर एक वो व्यक्ति जो I have a good कलीसिया में amen right हिस्सा now? लेते हैं पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ जाएं। And the third तीसरा is to pray for your city and nation. वो है आपको आपके शहर और देश के लिए प्रार्थना करना So चाहिए। first is your family. पहला है आपका परिवार, The second is God's family, the church. दूसरा है परमेश्वर का परिवार कलीसिया, And the third और तीसरा है is your city and the nation.
वो है आपका शहर और आपका देश। You could have been in any nation, देखिए आप किसी भी देश में हो सकते थे, but God made sure that you were born in that particular city, in that particular nation. Can I have a good amen right now? लेकिन परमेश्वर Yes. ने देखिए इस बात को पक्का किया कि आप उस खास शहर में, आप उस खास देश में जन्म लें। Hello, are you there right now? जब साथ में हैं। Now you can migrate to any country, that is your choice. But you see, by birth, you are an Indian. देखिए उसके बाद आप किसी भी दूसरे देश में Interesting. जाके बस सकते हैं, ये आपका चुनाव होता है, लेकिन जन्म से तो आप भारतीय है ना। Now come on now. Hello, are you there right now? Yes, after that you can get married to an American and come on now. Hello. जी हाँ, देखिए Nothing उसके wrong. बाद जो है आप अमेरिका की किसी लड़की से शादी कर सकते हैं, But somewhere the root was that particular nation. लेकिन कहीं ना कहीं वो जड़ जो है उस खास शहर या देश में से ही होता God है। is looking at you and me परमेश्वर आपके मेरी ओर देख रहा to है touch that particular segment. कि उस खास कार्य को हम करें। Oh, come on, somebody right चलिए। now. Somebody say hallelujah. कोई कहे हालेलुया। Hallelujah. सुन रहे हैं आप? So first is the family. Everyone say my family. तो पहला जो है परिवार से मिलकर मेरा Did परिवार। God make a mistake by putting you in that family? क्या परमेश्वर ने गलती किया आपको उस परिवार में रख के? क्या बकवास परिवार है, सब लोग झगड़ते रहे. You are the man God appointed to bring a revival in that family in the name of Jesus. Somebody receive this word. आप देखिए वही जरिया Yes. है, आप वो व्यक्ति है Yes. जो आपके परिवार में बेदारी को लेकर आएंगे। कोई तो ग्रहण करे इस वचन Come को। on, hallelujah. चले क्या हालेलुया। We look at Rahab. राहब को She देखिए, was a prostitute. वो एक वेश्या थी, She did all wrong things. उसने सब गंदे काम किए थे, But one day, लेकिन एक दिन she sees the spies. वो जासूसों को देखती है, She looks at them. उनकी ओर देखती है She says, और वो कहती है I am a very dirty woman. मैं बहुत गंदी औरत हूँ। I am not the right person, but yes, I believe that the God of Israel is the true God. Hallelujah. मैं सही व्यक्ति नहीं Yeah. हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना विश्वास करती हूँ कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा I परमेश्वर है। believe in even the Old Testament, grace came upon that woman. और पूरा यकीन है कि उस Imagine. पुराने नियम में भी देखिए उस महिला के ऊपर अनुग्रह उतर I आया। want to tell somebody किसी से कहना who चाहेंगे is perfect. कौन सिद्ध है? Nobody is perfect. कोई भी सिद्ध नहीं। You see, God sees the heart. देखिए परमेश्वर दिल को देखता है। She had a desire. She says, I want not only me to be saved, I want my family to be saved. उसके दिल में एक तमन्ना थी, वो कह रही थी कि मैं सिर्फ मैं ही बचना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा परिवार भी बच जाए। And the spies, they said, और उन जासूसों ने कहा this is done. तुम्हारे लिए होता He है। says, if you can tie this scarlet thread, red thread, और अगर तुम ये लाल जो धागा बांधोगी on your window, तुम्हारे खिड़की में, whomever you bring in that house, जिस किसको भी तुम उस घर में लाओगी they shall not be touched. उनको छुआ नहीं जाएगा। You see, church, आप देखते the कलीसिया, red was a symbol of the blood of Jesus. वो लाल रंग जो है Come on, come यीशु on, come मसीह on. के लहू का चिन्ह था। And she called some people. और कुछ लोगों को उसने बुलाया, Maybe they did not come. शायद हो सकता है वे नहीं आए Come हों। on, hello. अरे जा रहे चल, क्या red? सब लोगों को कुछ नहीं होने वाला. तू सब बकवास बोलती है. And some of them came लेकिन फिर भी कुछ लोग आए and they got saved. और उनको उद्धार मिल गया, If बच गए। God can use an imperfect woman according to the world, देखिए दुनिया के मुताबिक एक असिद्ध महिला को अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता how है, much more today तो कितना ज्यादा आज He can use you and me आपको और वो मेरा इस्तेमाल who करेगा, are washed by the blood of Jesus. जो यीशु के लहू के द्वारा धोए गए Pray हैं। for your brother, pray for your sister, pray for your parents daily. Hallelujah. आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, Yes. अपने माता पिता के लिए रोज प्रार्थना करें। Lift your हालेलुया। hands and say, Holy Spirit, give me that power. अपने हाथ में रखें, पवित्र आत्मा मुझे वो Give me सामर्थ्य that दे। grace. मुझे अनुग्रह दे। I want to tell somebody watching me right now. किसी कहना चाहते जो देख रहे हैं इस वक्त, Salvation is coming to your family today in the mighty name of Jesus. उद्धार आपके परिवार में आ रहा है आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Your family will worship God before this year closes in the name of Jesus. Lift your hand and receive. ये साल खत्म होने से Come पहले on. आपका परिवार परमेश्वर की आराधना करेगा। चलिए Yes. अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें। Hallelujah. हालेलुया। Yes, something will happen. क्या कुछ तो ऐसा You होगा। can lay hands on their आप photographs. उनकी तस्वीरों पे हाथ रख You सकते can lay hands on your family album हैं। आप अपने पारिवारिक एल्बम पर हाथ रख and सकते say, हैं God, और कहे I परमेश्वर don't like this uncle. मुझे ये अंकल He पसंद है, has cheated us. इन्होंने हमको धोखा दिया, But because of you, लेकिन Jesus, तेरे वजह से यीशु I lay my hands. हाथ रखता हूँ। I lay my hands. मैं अपने हाथ रखता Let हूँ। my entire family know Jesus. मेरा पूरा परिवार यीशु को जाने Come on now. And God will honor you. और परमेश्वर आपका सम्मान He करे। knows उन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, उन्होंने तुमको बहुत तकलीफ दी है. God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening, church? सुन रहे कलीसिया? This is the voice of the Holy Spirit speaking to you. ये पवित्र आत्मा की आवाज है जो आपसे बोल The रहा है। Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा Then है। comes the church. फिर आता है कलीसिया। Where does people get hurt most? और कहाँ पर लोगों को ज्यादा ठेस लगती है? In your house. कि घर में। Come on. कौन ज्यादा दुख देता है? अपने ज्यादा दुख देता है. अमेरिका वाला स्माइल करता है. हाँ. हम लोग को बहुत अच्छा लगता है. क्या कितनी चांगला मनुष्य है. काय स्माइल देतो.
Because you saw him only for one day. क्योंकि आपने बस एक दिन के लिए उसको देखा, But you see your people लेकिन आप अपने लोगों को देखते हैं every day. रोज। The morning they are brushing their teeth. All up. Like, come on now. क्या साथ में है? Hey, come on now. Yeah. Yeah. That's how it is. They ऐसे wake होता up and जाने दो. And the hair is like a witch. Say, my God, this is my family. The Holy Spirit says, yes. That's your wife. That's your sister. वो तुम्हारी It's your बहन, mother. तुम्हारी माँ है, तुम्हारी You have, पत्नी। to, you have to still love them. तो अभी भी उनसे That's प्रेम your करना auntie. चाहिए। You still love them. तुम्हें फिर से उनसे प्रेम करते रहना है। Your closest people. And the next place is the church. आपके करीबी लोग। फिर दूसरी जगह जो आती है वो है कलीसिया। Many people come to church. बहुत सारे कलीसिया में आते हैं, They feel they will find Jesus. उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनको यीशु मिलेगा। Come on now. चलिए, And they sit next to somebody. और किसी के बगल में बैठते Now हैं। the problem is, ये समस्या ये they होती think that the next person sitting is Jesus. है, वे सोचते हैं कि उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो स्वभाव में यीशु है, That person is not Jesus. लेकिन वो व्यक्ति यीशु नहीं होता। That person becomes Judas. वो व्यक्ति जो उसके लिए यहूदा बन जाता है। Come on, hello. Hello, 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 hello. सुनिए सुनिए, Now many people, देखिए बहुत सारे लोग they judge the church वे कलीसिया पर अपना फैसला लेते हैं, not by the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति के मुताबिक नहीं, not by the man of God. परमेश्वर के जन के मुताबिक नहीं। That's why many people, इसलिए बहुत सारे they have the right word in that church. They have the right presence of God in the church. They still leave the church. देखिए कलीसिया में सही Come on वचन now, प्रचार hello. हो रहा है, Think about परमेश्वर it, की think सही about it. उपस्थिति भी उस कलीसिया में मौजूद है, लेकिन फिर भी वो लोग कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं, Because क्योंकि somebody hurt them. किसी ने उनको ठेस पहुंचाया। Come on now. चलिए अब Yes. That's why इसलिए we need to pray for the church. हमें कलीसिया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत God, है every person in the church would really begin to know Jesus. कि प्रभु हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आता है Make यीशु को this your जानने लग prayer जाए। point. और Pray ये for प्रार्थना the मुद्दा Karuna बनाए। Siddha ministry. Pray for your church. आपकी कलीसिया के लिए, करुणा संत सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। Come on now. चलिए, Hello. Actually, जब हम लोग चर्च में जाते हैं तो हम ICU पेशेंट होते हैं. नहीं समझे, जाने दो. मैं इस तरफ जाता हूँ. तो मैं एक बार ICU में गया था. जवान था, थोड़ा जोश ज्यादा था. तो बुरा नहीं मानो, सच बोल रहा हूँ. तो ICU में गया तो मैं प्रार्थना कर रहा, come out. मुझे मेरा हाथ उठाने का आदत है ना, तो वो वायर में थोड़ा लग गया, वैसा बैठा, तो वैसा लगा ना, थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं, तो मैंने बोला क्या हो गया, मैं बोले गया क्या ये. हेलो, आर यू लिसनिंग राइट नाउ? सुन रहे हैं इस वक्त? तो बाद में उस टाइम से सीखा, मैं बोला ICU में ज्यादा हाथ पैर नहीं घुमाने का, गपचुप प्रार्थना करके निकलने का. चर्च भी ऐसा है. सो वी थिंक सब लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग ही टूटे हुए हैं. आपको पता नहीं, सब लोग टूटे हुए हैं उधर. तो टूटे हुए आदमी को ऐसा ऐसा. हेलो, आर यू देयर राइट नाउ? आप साथ में यस. सो यू लुकिंग गुड, तो आप अच्छे दिखते हैं, बट ईच ऑफ अस वी आर कैरिंग सम पेन इन आवर हार्ट. लेकिन हम में से हर कोई जो है अपने दिल में कुछ दर्द लिए होते हैं। कम ऑन नाउ. हेलो. चलिए, क्लोथ्स कैन हाइड दैट पेन. देखिए दर्द, कपड़ा जो है उस दर्द को छुपा सकता दैट्स है, व्हाई वी वेयर क्लोथ्स, इसलिए तो हम कपड़े पहनते हैं, टू हाइड आवर शेम. हमारी शर्मिंदगी को छुपाने के कम लिए। ऑन नाउ. वी वेयर क्लोथ्स फॉर ग्लोरी, टू लुक गुड. हम देखिए कपड़े पहनते हैं महिमा के लिए, ताकि हम अच्छा Come दिख on now. सकें। Hello, are you listening right now? So, but you see, when you come close to somebody, it pains. देखिए, उसने ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. And that's why we need to pray for our second family. It's God's family, the church. इसी वजह से देखिए हमें अपने दूसरे परिवार जो है परमेश्वर की परिवार जो है वो कलीसिया, उसके लिए। That's why Paul always prayed for the church. इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस ने हमेशा कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। Come on, look at somebody and say, Paul prayed for the church. इसी को देखकर कहे पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। Come on, hallelujah. चलिए कहे हालेलुया। Many people don't pray for the church. देखिए बहुत सारा कलीसिया के लिए प्रार्थना नहीं करते, Only what they can receive. उन्हें तो सिर्फ इसी से मतलब होता है कि क्या वो पा सकते हैं। Hello, praise the Lord. That's third thing. तीसरी चीज, Praying for the city and for the nation. तीसरा जो है वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना करना है। Write it down. Let me go quickly. लिख लीजिए, जल्दी Write से। it down. Prayer is the lifeline and the heartbeat of a thriving nation. और देखिए प्रार्थना ही देखिए एक कहें कि एक फलने फूलने वाले राष्ट्र के लिए दिल की धड़कन जैसा You know है। how God sees a nation? आप जानते हैं कैसे परमेश्वर एक राष्ट्र को देखता है? One day I was flying in a airplane. एक दिन एक एयरप्लेन में And उड़ान we were भरने जा landing in a city. I'll not like to take the name of the city. रहे। शहर का नाम नहीं लेंगे, एक शहर में पहुंचे And that city has a very bad name. और उस शहर का बहुत ही बुरा नाम था। And I said, Lord, मैंने कहा प्रभु what a dirty city. कितना गंदा शहर है। It is looking beautiful. अच्छा तो दिखता है, But Lord, what all happens over here? In my mind, I'm thinking. अपने मन में सोच रहे थे क्या क्या होता है यहाँ And पे। the Lord says, Son, प्रभु ने कहा बेटे don't criticize this nation. इस राष्ट्र की निंदा मत करो, I have called you over here. That's why.
मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पर इसी वजह से, Otherwise, why you need to be there, son? नहीं तो तुम्हें वहां होने की क्या जरूरत है बेटे? The Holy Spirit spoke, son, you are the salt, you are the light. That is why I've put you over there. पवित्र आत्मा ने कहा कि बेटे तुम वो नमक हो, वो ज्योति हो, इसलिए मैं तुम्हें वहां रखा है। As long as you are there, जब तक तुम वहां हो, there is hope for that city. उस शहर के लिए एक आशा है। Immediately I said, God, forgive me. और तुरंत ही इन्होंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर। I started praying for the city. इन्होंने शहर के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। So easy to criticize. निंदा करना बहुत आसान है। Look at somebody and say, so easy to criticize. किसी को देखकर कहे निंदा करना बहुत ही आसान है, But it requires faith, the eyes of faith, to pray for a city, to pray for a nation. लेकिन विश्वास की आंखों की जरूरत पड़ती है किसी शहर के लिए, किसी देश के लिए प्रार्थना Go to करने को। Proverbs 14:34. चलो जाएंगे नीति वचन का 14वां अध्याय उसका 33वां वचन। Proverbs 14:34, beautiful word. बहुत ही खूबसूरत सा वचन है यहाँ It पर। says, righteousness, everyone say what? Righteousness exalts a nation. देखिए धार्मिकता से जो है राष्ट्र की बढ़ोतरी होती है। राष्ट्र की बढ़ोतरी होती है। टेक्नोलॉजी जरूरी है। Hello? I believe in technology. I love technology. Righteousness exalts a nation. धार्मिकता जो है, धार्मिकता से राष्ट्र की बढ़ोतरी होती है। But sin is a reproach to any people. लेकिन पाप से देखिए देश के लोगों का अपमान होता है। One day, एक दिन God was about to destroy 2 cities which are mentioned in the Bible. परमेश्वर जो बाइबल में दर्ज है 2 शहरों का नाम, उनको नाश करने पर When I था। went to Israel, जब इस्राएल गए थे, you see these cities, Sodom is near the Dead Sea. Hello? और देखिए Real, ये huh? शहर, ये जो सदोम जो है वो मृत सागर के करीब है। Can I share this with you? It's real. सचमुच है। You see, in this city, there was a lot of sin. और देखिए शहर में बहुत सारे पाप ऐसा हुआ करते थे। Sodom and Gomorrah, if you read Sodom और Gomorrah. historical books, you'll find the dirtiness that happened over there. अगर आप ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कुछ गंदगी वहां पर होती थी। Hello, are you listening right now? Now, please don't ask me, what are those books? Can I please read? अब ये मत पूछना कि कौन सी No. पुस्तकें हैं, क्या मैं No. पढ़ सकती हूँ, It will corrupt your mind. या आपके दिमाग, आपके मन को पूरी से भ्रष्ट कर देंगे। Very bad. बहुत बुरा। Okay, anyway, having said that, so now अब्राहम Abraham has his nephew in that city, Lot. अब्राहम का भतीजा उस नगर या उस शहर में था, वहां पे He इस नाम meets पर God. And God, as a friend, will share secrets with Abraham and says, son, Abraham, I'm going to destroy these 2 cities. और देखिए अब्राहम के पास परमेश्वर आता है और कहता है कि एक मित्र के जैसा एकदम उसके साथ बांटता है और कहता है कि अब्राहम देखो इस नगर को मैं नाश करने जा And रहा हूँ। Abraham starts interceding. और फिर वहां पर अब्राहम जो है मध्यस्थी प्रार्थना करने He लगता said, है। God, if you find so many people in this city, will you still destroy? और वो कहता है कि परमेश्वर अगर आपको इतनी संख्या में वहां पर अगर मिल जाएंगे धार्मिक लोग तो भी क्या आप नाश कर देंगे? God says, no. परमेश्वर कहता है नहीं। Then Abraham says, maybe there are not so many people in the city. और फिर अब्राहम सोचता Come on, है, hello. इतने तो धर्मी Are you लोग listening नहीं right मिलेंगे now? उस नगर में। Yeah? तो बोलता है ये यीशु इतना जल्दी फट से मान गया तो कुछ तो गड़बड़ है. Come on, hello. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Abraham is a human being, na? Like us. अब्राहम भी तो हमारे जैसा इंसान था ना। He said, God, okay, थोड़ा नंबर नीचे करता हूं मैं. He said, God, if you find so many people in the city to destroy करेगा. God says, never. वो कहता है कि परमेश्वर अगर इतने लोग मिल जाए तो क्या नाश करेगा? परमेश्वर कहता है नहीं। ऐसा बोल रहा है never और मेरे को बोला डिस्ट्रॉय करता है. इधर बोलता है never, इधर बोलता है डिस्ट्रॉय करेगा. इसका मतलब इतने लोग नहीं है और थोड़ा नंबर नीचे लेके आता हूं मैं. You see, he's interceding. Everyone say interceding. देखिए वो वहां पे मध्यस्थी प्रार्थना कर रहा है। What is he doing? क्या कर रहा है वो? He's interceding for a nation. वो उस देश के लिए मध्यस्थी कर रहा Come है। on, somebody, hallelujah. You see, God shared his secret with Papa Abraham. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने रहस्य को पापा अब्राहम से बांटा। Do you know who was the first prophet? आप जानते हैं पहला भविष्यवक्ता कौन था? Papa Abraham. पापा अब्राहम। Oh, come on, hallelujah. He said, I have called my prophet to pray for you, Abimelech. और परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपने First भविष्यवक्ता prophet, को बुलाया है Abraham. अभी मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करने को। Come on, hallelujah. Yes, a prophet is an intercessor. और एक भविष्यवक्ता जो होता है मध्यस्थी प्रार्थना करता है। I believe this calling is coming on you. और यकीन मानते हैं कि ये बुलाहट आप पर आ रही है। Daniel was a prophetic intercessor. He was a prophet. Hey! और दानियल Come भविष्यवक्ता on! मध्यस्थी प्रार्थना करने Receive वो this भविष्यवक्ता grace. था। Receive this grace. इस अनुग्रह को ग्रहण करें। You know, see, many people think, I was talking yesterday, prophecy is not just names and numbers. और देखकर बता No, रहे थे sir. कि भविष्यवाणियों का मतलब सिर्फ नाम और नंबर ही नहीं। A prophet can change a city. और एक भविष्यवक्ता जो होता है वो शहर की दशा बदल सकता है। Come on, hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? There's a great man from Tamil Nadu. परमेश्वर के महान जन Can I तमिलनाडु share these things right now? Great man from Tamil Nadu. तमिलनाडु से एक महान जन We परमेश्वर। used to call him daddy.
उन्हें डैडी करके He used पुकारा to करते थे। every day spend 7 hours in prayer. हर दिन वो 7 घंटे प्रार्थना में बिताया करते थे। Dr. John Rabindranath. डॉक्टर जॉन रविंद्रनाथ जी, I had the privilege of sitting at his feet. और इनको सम्मान मिला था उनके चरणों में बैठने के लिए। Hello, are you listening? And after I sat down, he laid his hands on me and he says, Thambi, you will see Jesus. इन पर हाथ रखने के बाद उन्होंने कहा, तंबी तुम यीशु को देखोगे। Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. And I said, okay, Jesus. Okay, I'll see Jesus. Actually, I saw Jesus. दरअसल इन्होंने बातें यीशु को He's a देखी। great man of God. परमेश्वर के बड़े महान जनते But हुए। he said something that I still remember as a लेकिन young उन्होंने man. कुछ ऐसा वाक्य कहा था जो अभी भी याद है। He said, उन्होंने कहा, whenever a prophet comes in the city, जब कभी कोई भविष्यवक्ता किसी शहर में आते हैं, either it is to bless the city or to judge the city. तो या तो उस शहर को आशीष देने के लिए आए हैं या फिर उस शहर पर दंड लाने के लिए आए That's why when Samuel the prophet came to Ramah, हैं। और इसीलिए भविष्यवक्ता शमूएल जब रामा में आए, he said, do you come in peace? तब उससे पूछा, क्या तुम शांति के साथ आए And हो? the elders trembled, the Bible says. और बाइबल कहती है कि पुरनीय लोग कांपने लग गए। Because prophet Samuel, oh, he says, my God, this fellow is come now. कुछ तो लफड़ा है. He says, peace. उन्होंने And कहा, everybody says, peace, thank God, peace. रे बाबा. सब लोग कहते हैं, अरे। ये कुछ बोलेगा, इधर कुछ लफड़ा होएगा. That was a prophet. ये होता है एक भविष्यवक्ता। And how it happens is, कैसे ये होता है? you start interceding for these areas. आप इन क्षेत्रों के लिए मध्यस्थी प्रार्थना करना शुरू करते God will start sharing secrets with you हैं और परमेश्वर आपसे रहस्य को बांटने लगेगा। regarding your family. आपके परिवार के बारे Come में, on, regarding your church, आपकी कलीसिया के बारे में, regarding your city, your आपके nation. शहर, आपके राष्ट्र के बारे में। I believe यकीन मानते if हैं। there is a man of God who can pray for the city, hey, अगर कोई परमेश्वर का जन इस शहर के लिए प्रार्थना करेगा, many accidents could have been avoided. तो बहुत सारी दुर्घटनाएं जो टल जाएंगी। Today, God is raising up people like that. आज परमेश्वर ऐसे जैसे लोगों को खड़ा कर रहा है। Oh, you don't have to pray for hours, but sometimes at least pray for the city. Pray for these areas the Holy Spirit is saying. आपको घंटों तक प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, कम से Yes. कम कुछ पल तो आप शहर के लिए प्रार्थना में लगाएं। पवित्र आत्मा कहता है। Let me ask you, आपसे पूछने दीजिए, why would God show something to a person who is not connected with that subject? और क्यों परमेश्वर किसी व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखाएगा जो उस विषय से जुड़ा हुआ ही नहीं है? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप फिजिक्स क्लास से जुड़े नहीं हैं, तो परमेश्वर आपको फिजिक्स क्यों सिखाएगा? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे हार्ट पर, तुम्हारे हृदय पर वो शहर है और खुदा जानता है कि ये बंदा ये शहर के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो इसी को ये शहर के बारे में बताओ. There comes the prophetic grace upon your life. भविष्य का अनुग्रह आपकी जिंदगी पर। Come on, hallelujah. हालेलुया। खुदा बताएगा बेटा ये जो बोट आने वाली है, ये बोट टकराने वाली है गेट ऑफ इंडिया में, प्रार्थना कर, ऐसा नहीं होना चाहिए. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रार्थना करे कि बीएसटी बस ऐसे आने वाले, लेकिन बीएसटी भर के बस में ज्यादा लोगों को नहीं नुकसान, ऐसा प्रार्थना कर. God will show you. परमेश्वर आपको दिखाएगा। God will show you. परमेश्वर आपको दिखाएगा। May that anointing come upon you today. वो अभिषेक आप पर आ जाए। Today, as you cry out to God, आज जैसे आप परमेश्वर पुकारते हैं, oh, that grace is coming on you. वो अनुग्रह आप पर आ रहा That है। prophetic grace is coming on वो you. भविष्य का अनुग्रह आप पर आ रहा है। Daniels are being raised up. ऐसे दानियल खड़े किए जा रहे हैं। Yes, Ezekiel's are being raised up. या यहेजकेल जैसे लोगों को खड़ा किया Oh, जा रहा है। Abraham's are being raised up. अब्राहम को खड़ा किया जा रहा Men है। and women of faith are being raised up. विश्वास के स्त्री पुरुषों को खड़ा किया जा I रहा है। prophesy it is going to happen भविष्य ने कहता है ऐसा होने जा रहा है। concerning your family, आपके परिवार से संबंधित, concerning your church, आपके कलीसिया से संबंधित, concerning your city, concerning your nation. आपके शहर से, आपके राष्ट्र से संबंधित। Remember to pray also for Israel. इस्राएल के लिए भी प्रार्थना करना The याद Lord रखिएगा। will show you things. परमेश्वर आपको ऐसी चीजें दिखाएगा। Hallelujah. Write it down. लिख लीजिए। Our prayers can shape a nation's destiny. हमारी प्रार्थनाएं जो हैं किसी भी देश के विधान को आकार दे सकती हैं। A nation's destiny. एक देश के विधान को, And calling it to align with God's plans and purposes. और फिर उसके बाद परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों से वो जोड़ सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, God is calling you to the ministry of intercession. परमेश्वर आपको मध्यस्थी प्रार्थना की सेवकाई में बुला रहा है। Come on, come on, come on, come on. चलिए, Hallelujah. चलिए. Hallelujah. I want you to share this. I believe this is a prophetic word. लेकिन मानते हैं कि भविष्यता का वचन है, तो किसी का शेयर कर जल्दी से। सोचिए ना, आपकी प्रार्थना हजारों लोगों को टच कर रही है. खुदा ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करेगा. सोचो मत कि आप गरीब हैं, सोचो मत कि आप टूटे हुए हैं, सोचो मत कि आप अनपढ़ हैं. खुदा ऐसे लोगों को उठाने वाला है. कोई देख रहा है मुझे. You are saying, what is the use of my life? आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का क्या फायदा?
What is the use of my life? मेरी जिंदगी का क्या फायदा? Sir, you are getting a new purpose in your life. आपको अपनी जिंदगी में नए उद्देश्य मिल रहे हैं. You are getting a new vision and purpose for your life. I receive this word. अपनी जिंदगी के लिए नया दर्शन और नया उद्देश्य आपको मिल रहा है. ग्रहण करें. Hallelujah. हालेलुया. Somebody say, I receive right now. कोई तो कहा मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? There was a person who was, by an accident, he became blind. और एक आदमी था, देखिए एक्सीडेंट होने की वजह से वो अंधा हो गया था. He was working in a company and something fell in his eyes. और वो किसी कंपनी में काम कर रहा था, कुछ तो उसकी आंखों में चला गया. And listen to me carefully. सुनिए ध्यान से. And he would cry out to God as God, take my life. और वो परमेश्वर को पुकार रहा था बार-बार कि प्रभु मुझे उठा ले. I don't want to live. मैं जीना नहीं चाहता. One day, एक दिन he heard a message by a great man of God in England और इंग्लैंड में परमेश्वर के महान जन से उन्होंने एक संदेश को सुना that how God uses ordinary people to intercede. कि कैसे परमेश्वर जो साधारण लोगों का इस्तेमाल करता है मध्यस्थी प्रार्थना के लिए. Hello, are you क्या आप साथ में हैं? Yes. Listen carefully. सुनिए. And this man, और ये व्यक्ति he began to pray उसने प्रार्थना करना शुरू किया for that city. उस शहर के लिए. In that city, there was prostitution, gambling, उस शहर में alcohol. वेश्यावृत्ति होती थी, बहुत ही जुआ होता था. and he started praying. और उसने प्रार्थना करना You शुरू won't believe. किया. आप यकीन नहीं मानेंगे, That city वो शहर was touched by God. परमेश्वर के द्वारा छू लिया गया. And it started the Welsh revival. और इससे जो है वेल्स रिवाइवल शुरू हो Come गई. on, somebody, hallelujah. चले कोई तो कहा हालेलुया. People on the streets would fall crying. और लोग जो है सड़कों पर परमेश्वर को पुकारने लगते Yes, थे, रोते थे. people, he never preached much and all. But you see, God used this man. अब उन्होंने ज्यादा कुछ ऐसा प्रचार नहीं किया, लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर ने उस व्यक्ति का इस्तेमाल किया. When this man passed away, जब इस व्यक्ति का देहांत हुआ, so many people were touched by God. कई सारे परमेश्वर के द्वारा छू लिए गए I थे. want to talk to somebody किसी से बोलना चाहते हैं prophetically. भविष्यवाणी तौर If पे. you listen to this word, अगर आप इस वचन को सुनेंगे, angels will honor you. स्वर्गदूत आपका I सम्मान tell you, करेंगे. this is a word for somebody. ये किसी के लिए वचन है. Don't say you're old. ऐसा मत कहें कि आप Don't एकदम, say you're uneducated. ऐसा मत कहें कि आप अनपढ़ हैं. Don't say you are poor. ऐसा मत कहें कि आप गरीब हैं. God can change a nation's destiny because of your prayers. Lift your hands and say, I received this prophetic word today. परमेश्वर राष्ट्र के जो Hallelujah. विधान को बदल सकता है आपकी प्रार्थनाओं की वजह से. चलिए, Come on, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. Hallelujah. Many of us will be surprised when we queue up in heaven. और देखिए हमें से बहुत सारे लोग जब I आश्चर्य always पड़ जाएंगे tell जब स्वर्ग में जब हम कतार में खड़े होंगे तो. Many of us who gets likes, please, okay, I talk about myself also. Likes and, hearts and bulls, woo, 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 all that, hearts. Maybe we will be standing a little behind. हमें से बहुत सारे जो लाइक्स मिलते हैं, देखिए अनेकों प्रकार की Comments मिलते हैं, comments मिलते हैं, देखिए हम shares मिलते हैं. आजकल देखना कितने लोगों ने लाइक किया. अरे 5 लोगों ने लाइक किया है. और उसको 5,000 लोगों ने लाइक किया है. जरूर ज्यादा anointed है वो. सोचते हैं ना हम लोग ऐसा? This is our thought. ऐसे ही होता है हमारा विचार. More famous means more anointed. ज्यादा मशहूर का मतलब ज्यादा अभिषेकित. But you will be surprised लेकिन आप चौंक जाएंगे at some of the people whom I have met. Hardly people know them. And they are so anointed. और कुछ लोगों से मिले जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन बड़े बहुत ही ज्यादा अभिषेकित They हैं. are in the villages. They are nobody knows them. गांव में सेवाटल करते हैं और कोई नहीं जानता उन्हें. कोई नहीं जानता. अरे तुम्हारे अथड़ी का कलर बताएगा तेरे को. ऐसा अभिषेक है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, amazing anointing. बड़े जबरदस्त अभिषेक. In that day, उस दिन I put all my fingers on myself. Even I will be standing little behind, और देखिए पूरी उंगली अपने पर रखते हैं कि And some old mother, और कुछ बुजुर्ग some माँ, old uncle will be first in the line. कुछ बुजुर्ग अंकल जो हैं लाइन में कतार में आगे होंगे. And we will ask, और हम पूछेंगे ये कौन है रे? अरे ये कौन है? ये तो फेसबुक पे भी नहीं था. Come on now. इसका तो एक रील नहीं देखा मैंने. ये कौन आगे गया? प्रभु बोलेगा, इसके रील तुम लोगों ने नहीं बनाए, हम लोग बनाते थे ऊपर. He is famous in heaven. स्वर्ग में वो मशहूर है. You are famous on earth. आप धरती पर में He is मशहूर हैं, famous in heaven. लेकिन वो स्वर्ग में Somebody receive this word today. कोई तो ग्रहण करे इस वचन Lift को. your hand and receive this word, brother. आप God ग्रहण is करें, इस वचन को honoring ग्रहण you करें. today in the name of Jesus. परमेश्वर अपना आशीष होने जा रहा है यीशु के नाम में. What do you want to be? क्या आप बनना चाहते हैं? You want to be famous on this earth or you want to also be famous in heaven? आप क्या इस धरती पर मशहूर होना चाहते हैं या साथ ही साथ स्वर्ग में भी That's why मशहूर होना the चाहते हैं? evil spirit says, Paul, I know. इसलिए तो उस दुष्ट आत्मा ने कहा पौलुस को मैं जानता हूँ, I know Jesus also. यीशु को भी मैं जानता हूँ, But who are you? लेकिन तुम कौन हो? Paul was known by the demonic powers. He was known by the angels.
और देखिए दुष्ट शक्ति ने भी उसको पहचाना, Anyway, स्वर्गदूतों ने उसको पहचाना। The second, can I go to the third point? Is this blessing you, church? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? I'm not entertaining you, okay? देखिए आपका मनोरंजन नहीं कर रहे हैं यहाँ। The fourth point, right? चौथा मुद्दा, You need to pray for leadership. देखिए आपको अगुवापन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। Look at somebody and say, pray for leadership. किसी को देखकर कहें अगुवापन के लिए प्रार्थना करें। Leadership determines the direction of a nation. देखिए अगुवापन या कहे नेतागण जो होते हैं, देखिए यही जो है तय करते हैं एक राष्ट्र की परिभाषा को। Come on, hallelujah. Many times I've been criticized देखिए बहुत बार इनकी निंदा की जाती है that I pray for everyone, कि हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, all the leaders. सभी अगुओं के लिए, नेताओं के Somebody लिए। wrote to me, किसी ने लिखा, don't pray for that leader. उस नेता के लिए प्रार्थना मत करना। I said, why? उन्होंने पूछा क्यों? He says, no, this person is persecuting so and so. क्योंकि ये व्यक्ति ना इनको सताता है। But the Bible says, बाइबल कहती है God wants everyone to be saved. परमेश्वर चाहता है हर एक को उद्धार मिल जाए। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं। Who knows God can touch many Sauls and make them to Pauls? कौन जानता है परमेश्वर बहुत सारे जो शाऊल को छूकर उनको come पौलुस on, बनाएगा। hallelujah. Are you listening right आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? God can change somebody. परमेश्वर किसी को बदल सकता है। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You need to pray for all our leaders. आपको सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। How many of you following? That God would lead them supernaturally. परमेश्वर अलौकिक तौर पे उनकी That अगुवाई God would करे। bless them with good health. कि परमेश्वर उनको अच्छे स्वास्थ्य से आशीष Even they दे। have families. Lord, bless their families. परमेश्वर के परिवारों को भी आशीष दे। How many of you listening right now? ये तो सुन I'm रहे हैं। sincerely saying this from my heart. और अपने पूरे दिल से सच्चाई से कह I रहे हैं। don't mean this just to please somebody. No, sir. किसी को बस खुश करने के लिए नहीं कह रहे हैं। I pray for leaders. नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। That God would lead our nation in ways of God. Hallelujah. परमेश्वर हमारे This देश nation को would prosper. अपने मार्ग में अगुवाई करे। ये देश जो If you समृद्ध होगा। believe this, somebody shout अगर hallelujah. विश्वास करे चिल्ला हालेलुया। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस You वक्त? see, God always uses a leader. देखिए परमेश्वर हमेशा अगुवा या कहे नेता को इस्तेमाल करता है। How many of you following me right ये तो now? सुन रहे हैं। Yes, Paul specifically calls us to intercede for kings. Can we go further right now into verse 2 right now? In जल्दी 1 समझाइए। Timothy chapter 2 and verse 2. पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। He says, intercede for kings and for all those in authority. और देखिए वचन में लिखा है कि राजाओं के लिए और सभी जो अधिकार के स्तर पे हैं उनके लिए प्रार्थना विनती करो। How many of you following me right now? Intercede for kings and for all those who are in authority. राजाओं के लिए और वे सब जो अधिकार के पद पे हैं उनके लिए प्रार्थना मध्यस्थी This करो। is not a advice. This is a command of God. और ये कोई सलाह या राय नहीं है, परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। That is why we must pray. इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत So है। first you pray for your family. तो सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, Pray for the church. कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, You pray for the city and the nation. आप शहर के लिए और देश के लिए प्रार्थना करें, And the fourth thing, और चौथी चीज, you pray for good leadership in the nations. और आप राष्ट्र में अच्छे जो अगुवापन के लिए प्रार्थना करें। How many of you listening right now? ये तो समझ लें। Lift your hands and say, Father, lead all the leaders of our nation in your ways, O God. अपने हाथ उठा के प्रार्थना करें कि पिता हमारे देश के सभी नेताओं को Yes. तेरे Bless तेरे मार्ग में Karune, अगुवाई Prabhu. कर, We उन्हें bless them in the name of उन्हें Jesus. आशीष दे पिता। Hallelujah. I tell you, कह रहे हैं आपसे, one day God will make your voice to be heard in this nation. और एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर आपकी आवाज को इस देश में बुलंद बनाएगा। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? You see, church, आप देखते कलीसिया, whether we agree with their policies or not. चाहे हम सारे पॉलिसी से सहमत हो या नहीं। You know what Solomon prayed? आप जानते हैं सुलेमान ने क्या प्रार्थना? Can I show it to you? क्या आपको दिखा सकते हैं? See, this is the heart of a leader. और देखिए एक नेता का दिल ऐसा होता Second है। Chronicles chapter 1 verse 10. Now give me wisdom अब मुझे बुद्धि दे and knowledge. और समझदारी। Why? That I may go out क्यों? ताकि मैं and come in before these people. ताकि मैं इस लोगों के सामने अंदर बाहर जा For सकूं। who can judge this great people of yours? तेरे इतने बड़ी प्रजा का कौन न्याय कर सकेगा? कौन न्याय कर सकेगा? Here is Solomon. यहाँ देखते हैं सुलेमान को, What is he praying for? वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? He has gold, he has silver, he has everything. The kingdom is his. He says, Lord, now I need wisdom. उसके पास सोना है, चांदी है, उसके पास राज्य भी है, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए, I need understanding. मुझे समझदारी चाहिए, Not these worldly things. और ये सांसारिक चीजों के लिए To नहीं, lead this nation in the right way. इस राष्ट्र को सही मार्ग में अगुवाई करने की। Can I have a good amen right क्या now? शामिल सुन सकते हैं? Imagine if every Christian prayed for this nation. जरा कल्पना करें कि हर एक मसीह अगर इस देश के लिए प्रार्थना करने लगे। Hello, come on now. क्या साथ में है? सुने, I believe, यकीन मानते हैं the Lord will do something powerful in this nation. प्रभु कुछ सामर्थ्यशाली काम करेगा इस Can I देश have a में। good amen right क्या now? अच्छा आमीन सुन सकते हैं इस वक्त? So whenever you feel like criticizing, तो जब कभी आपको ऐसा महसूस होता किसी की निंदा करने का, ये लोग सब ऐसा ही है. Stop. रुक जाए, Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोले, you are a life-giving well, आप जीवन देने वाला एक कुआं है, not a suicidal well. और खुदकुशी करवाने वाले कुआं नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? पहले हमारे यहाँ पर ग्राउंड में एक ऐसा कुआं रहता था, सूखा था.
जिसको भी कुछ तकलीफ रहती थी ना, हेलो, उसमें जाके उड़ी मारते थे. फिर फायर ब्रिगेड आते. हेलो, सच बोल रहा हूँ यार. हम लोग बोलते हैं और एक गया. Then the fire brigade, they closed that well. फिर फायर ब्रिगेड वालों ने आगे Really, उस I'm telling you कुएं the को भर truth, दिया। man. There was hardly any water. पानी नहीं हुआ करता। Nobody used to remove water from that. उसमें कोई पानी नहीं निकलता था। Today I remember. आज याद आता है। You are a life-giving well. आप जीवन देने वाला कुआं है। Bible says that by the blessing of a righteous man, a city is exalted. बाइबल ऐसा कहते हैं कि धर्मी जन की आशीष से जो है देश की बढ़ोतरी होती है। Whenever somebody is criticizing our nation or any nation for that matter, और देखिए जब कभी कोई हमारे देश की या किसी भी देश की अगर निंदा करते हैं don't join them. तो उनके साथ जुड़ना नहीं। Do we have problems? क्या हमारे पास समस्याएं हैं? Yes. जी हाँ। In a family there are issues. और परिवार में देखिए ऐसे मामले होते हैं। Come on now. चलिए। Show me one perfect family कोई एक सिद्ध परिवार दिखाएं and we will give you the Nobel Prize. और उसको हम नोबेल जो प्राइज होता है वो देंगे। तुम्हारा हेलो, are you listening right now? ऐसा कोई फैमिली रहेगा ना तो उसमें कोई कम लोग रहेंगे फिर. In a family there will always be small at least small issues. और परिवारों में देखिए छोटे-छोटे कुछ ना कुछ मामले तो रहेंगे। But still by the grace of God we Indians we learn to live in a family. लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से हम भारतीय लोगों ने सीखा है परिवार में रह के जीना। Let us pray for our nation. चलिए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। Every day you must pray for our leaders. हर दिन आपको हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करनी जरूरत That है। was the heart. I believe Solomon बोलता था कि yes मेरे पास वो सब कुछ है लेकिन प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे ताकि मैं इस देश को तेरे वचनों में तेरे मार्गों में चलाऊं. Pray for the leadership even if it means for 30 seconds. और भले देखिए 30 सेकंड के लिए क्यों ना हो नेतापन अगुवापन के लिए प्रार्थना करें। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? 30 seconds you must pray. 30 सेकंड आपको हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए। I believe if all this is a prophetic word, this is the heart by the Holy Spirit for you. देखिए भविष्यवक्ताई वचन है ये पवित्र आत्मा के हृदय को सामने पेश किया जा रहा है। Come on, praise the Lord. चलिए कहें प्रभु यीशु Now मसीह। why we should pray? और देखिए अब क्यों हमें प्रार्थना करनी Can we चाहिए? give me 1 Timothy please? And yes, and verse 2. First one, that we may lead a quiet and a peaceable life. देखिए वचन में लिखा है ताकि हम विश्राम और चैन के साथ जिंदगी बिताएं, जीवन When we बिताएं। pray for these 4 areas, देखिए जब इन 4 क्षेत्रों के लिए आप प्रार्थना करते the हैं first thing that will come is peace. पहली चीज जो आपके पास आएगी वो है शांति। Come on, hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस You know why people like to go to hill station? आप जानते हैं क्यों लोग जो है पहाड़ी स्टेशन में हिल स्टेशन में जाना पसंद Come on now. बोलते बहुत मजा आता है. अरे मजा वजा कुछ नहीं आता है. शांत है वहां पर. थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है. How many of you agree with me? What जो I'm सहमत है इस वक्त saying? Yes. People are searching for peace. लोग बस शांति की तलाश में होते Why हैं। people go on cruise, you know? लोग क्यों क्रूज पर जाते हैं? I'll tell you. बता दें आपको I'll tell you. Really, I'll tell you. The mobile is not working. वहां पे मोबाइल नहीं चलता। Really नहीं चल रहा है. Public ऐसा मोबाइल उठाती है. When we reached Lakshadweep, they were putting mobile outside the. जब लक्षद्वीप पहुंचे तो वहां पे लोग ऐसा मोबाइल को बाहर ऐसा My son was irritated. Now he cannot do anything. Dada, it's so boring. Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं But there were others लेकिन वहां दूसरे लोग थे who were standing like that. Hello, are you listening right now? Yeah. Peace. शांति। They're searching for peace. वे शांति की तलाश में I होते can हैं। see the look on your face now. देख सकते हैं आपके चेहरे I पे। wish I was. Some people are walking. The sea is there. They're walking. चल रहे हैं समुद्र है Angels. स्वदूत जैसा चल रहे हैं Hello, are you listening, church? Peace. शांति। You see, today in the world, there is everything. आज की दुनिया में देखिए सब कुछ है There is no peace. लेकिन कोई शांति नहीं है। That we may live a quiet and a peaceable life. Everyone say, Shantimay Jeevan. Hallelujah. Peaceable life. Everyone say, peaceable लोग हैं life. शांतिमय जीवन। Hallelujah. हालेलुया। May God give it to us. परमेश्वर हमें दिए। Lord, you are the Prince of Peace. We pray for peace in this nation. और पिता तो In शांति every का city, in every राजकुमार है। state. और हम प्रार्थना करते हैं इस देश में और हर एक शहर हर एक राज्य में शांति आए। God bless our leaders. परमेश्वर हमारे नेताओं को आशीष दे In the mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम And में। God's people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा Amen. Amen. So the first thing is Shantimay Jeevan. सबसे पहली चीज है शांतिमय जीवन। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं? Yes. You know, I've been in a city और ऐसे शहरों में गए हैं and where you walk with your wife, your sister, your friend, a girlfriend, whatever, and nobody will trouble you. और
जहां पर आप अपने Come on now. बच्चों I'll के साथ understand what I'm saying. कोई सीटी नहीं बजाएगा, कोई ऐसा कमेंट नहीं मारेगा. रात को 12 बजे 1 बजे चल रहे हैं. ओके, खाना खा के चल रहे हैं रास्ते पर. कोई ऐसा छेड़छाड़ नहीं करेगा, कुछ नहीं. आराम से चल रहे हैं. मेरे साथ जो टीम थी बोला कितना शांत है ना ये. Hello, all the ladies, are you understanding what I'm सब saying? महिलाएं समझ रही हैं? Yes. I will not tell you the name of the place. I'll not tell you. I said, I pray that this comes in every city. कहा कि ये बात जो है हर एक शहर में आ जाए. So my team member, she told my wife and says, Pastor, I'm leaving. Because it was late, we had to meet all the team. It was 2 o'clock in the night. रात के 2 बज गए थे. I said, and my wife asked her, how are you going? इन्होंने बहन अनीता ने पूछा कैसे जाएंगे आप? She said, I'll take a cab and go. उन्होंने कहा कि कैब पकड़ के निकल जाऊंगी. I said, are you sure? सब पूछा Do you क्या want है, us to सच में? drop you? हम आप चाहे तो हम मदद कर She said, सकते no, हैं. it's just 20 minutes now. उन्होंने कहा बस 20 मिनट की दूरी है. Aren't you scared? आपको डर नहीं लग रहा? She says, no, it's cool over here. It's peaceful over here. उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ बहुत ही शांति का माहौल है. Imagine you living in that atmosphere. जरा कल्पना करें ऐसे वातावरण में आप जीते Can I हैं. have a good amen, क्या church? अच्छा महसूस हो सकते हैं? Come on, hallelujah. This is possible. ये संभव है. A quiet and a peaceful life. और देखिए चैन और शांतिमय जीवन God will give it to you. परमेश्वर आपको देगा. When you start praying for these 4 things, जब आप इन 4 चीजों का प्रार्थना करना शुरू the करते हैं angels of peace, of grace will be with you, sir. और शांति का और अनुग्रह का स्वर्गदूत जो आपके साथ होगा. Hallelujah. Hallelujah. The second thing, दूसरी चीज. in all godliness. और सारे जो भक्ति में You see, church, आप देखते हैं कलीसिया, Lot was in Sodom, लूत सदोम में था, but he was not praying for Sodom. लेकिन वो सदोम के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Very interesting. बहुत दिलचस्प Abraham had to pray for Sodom. कि अब्राहम को सदोम के लिए प्रार्थना करना पड़ा. Sometimes I ask God, why is this fellow not praying? और कभी-कभी पूछते हैं कि परमेश्वर वो व्यक्ति क्यों नहीं प्रार्थना कर रहा था? Lot was sitting in the council of the ungodly, but he was not praying for that city. How many understand what I'm कितने saying? लोग समझ रहा है? Oh, कि this देखिए, is वो deep, दुष्टों brother. की- दुष्टों की मंडली में तो लूत बैठा हुआ था, लेकिन उस शहर के लिए, नगर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा He था. was in the gates. वो फाटक में था. He knew the leaders, वो नेताओं को जानता था, but he never prayed for that city. लेकिन उस शहर के लिए उसने प्रार्थना कभी नहीं That's की. why there was godliness, ungodliness. इसलिए देखते अभक्ति थी वहां पर. But when we pray, God, लेकिन जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर, Lord, have mercy on our nation. और प्रभु हमारे देश पर दया दे. Certain laws will not come in the nation. कुछ ऐसे Oh, I don't know if कानून you're जो हैं, कुछ understanding नियम right जो now. हैं, उस राष्ट्र में नहीं आएंगे. In America now, अमेरिका में अभी young children, नौजवान बच्चे they are asking them, पूछते हैं, do you feel, they're asking the boys, लड़कों से पूछते हैं, do you feel like a girl? क्या तुम्हें लड़कीपन जैसा महसूस होता है? The children are confused. और वहाँ के बच्चे जो एकदम उलझन में हैं, They come to their parents and ask them, Mama, teacher is asking me, do you feel like a girl? Mama, what am I? बच्चा पूछता है कि वो हमसे पूछते हैं क्या तुम्हें लड़की जैसा महसूस हो रहा है, तो वो पूछता है कि माँ मैं Parents कौन are हूँ? fed up. जो माँ बाप एकदम परेशान हो चुके हैं. In India, thank God. भारत देश में परमेश्वर का Come धन्यवाद. on, bless India. भारत Hallelujah. देश को आशीष दे. Give Jesus a shout of चलिए praise. यीशु को ताली की भेज रहा है. ये चल रहा है. They ask the girl, लड़की से पूछते हैं, do you feel a little like a boy? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी लड़केपन जैसा महसूस होता And the girls are confused. है? लड़कियां उलझन में है वहाँ. I have a body of a girl and this lady is telling me, do you feel like a boy? मेरे पास लड़की का शरीर है और ये महिला मुझसे पूछ रही है कि मुझे I like to लड़के play से with महसूस- dolls and she's trying to make me to play like a boy. Why? Confused. Children are confused. बच्चे And लोग they उलझन give में them money to change their body. How many are understanding what I'm saying? It is madness. एकदम पागलपन है ये. You don't know what is happening. Some of you are shocked. आप में से कुछ लोग चौंक गए हैं. ऐसा होता है? सर होता है? That's why called godliness. There are certain laws which break up the families, and thank God for our nation and its leaders that the family is still intact. God bless India. Hallelujah. ऐसे भी कानून हैं जो परिवारों को तबाह कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि भारत देश में ऐसे नेता हैं, ऐसे अगुवे लोग हैं जिनके कानून की वजह से भारत देश में आज भी परिवार बना हुआ Do है. we have issues? क्या हमारे बीच में मामले हैं? Yes. जी हाँ. We need to pray. हमें प्रार्थना करने की जरूरत है. Can I have a good amen right now? अच्छा मैं सोच Please, सकते sir, I am not a politician. I am a pastor. ये कोई राजनेता नहीं है, पासबान है, I don't know anybody. किसी को नहीं जानते. सिवाय परमेश्वर को जानता हूं बस. मेरे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है मेरा. आपका है, प्रेज गॉड, इस्तेमाल करो. मैं किसी को नेता को नहीं पहचानता. मैं किसी बड़े आदमी को नहीं पहचानता हूं. वो लोग पहचानते होंगे, लेकिन मुझे नहीं, मैं नहीं किसी को पहचानता हूं. Are you listening right now? I don't have any influence except influence with God. Praise the Lord. प्रभु स्तुति Are you हो. listening right now? See, it says with all godliness and reverence. और देखिए यहाँ पे लिखा है पूरी
भक्ति में और आदर सम्मान के साथ। Reverence is the values. और देखिए भय आदर जो ये गरिमा होती है। You see, there are angels will move upon our nation. और देखिए ऐसे स्वदूत जो हमारे राष्ट्र पर ऐसे मंडराते हैं। Today I am telling you what the Holy Spirit told me to tell you. और आज आप लोगों से कह रहे हैं जो पवित्र आत्मा ने इससे कहा बताने को। There is a personal prophecy. और देखिए ऐसी व्यक्तिगत भविष्यवाणी And होती there है। is a corporate prophecy. और फिर देखते हैं सामूहिक भविष्यवाणी भी God होती is है। speaking right now prophetic word over the nation. और परमेश्वर इस वक्त सीधे भविष्य का वचन बोल रहा है राष्ट्र पर। Hallelujah. If you will obey this word, अगर आप इस वचन का पालन करेंगे, great prosperity will come in your home. बड़ी समृद्धि आपके घर में आएगी। Listen to me what I'm saying. सुनिए जो आपसे कह रहे हैं। What did not happen for months and years will happen in a week in Jesus' name. जो महीनों और सालों से नहीं, वो परमेश्वर हफ्तों भर में काम कर देगा यीशु के नाम में। Angels, you know, I heard a great man of God called Prophet Hubert Angel. परमेश्वर महान जब भविष्य था यूबर्ट एंजल जी। Can I speak now? क्या बोल सकते हैं? Can I speak? This is a powerful word. Somebody received right वो now. तो ग्रहण करें इस वक्त। And in that he said, do you want to see angels? And everybody said, yes. उन्होंने पूछा कि क्या तुम लोग स्वदूत देखना चाहते हो? तो सभी लोगों ने Says, कहा हाँ। do you want to work with angels? क्या दूसरा सवाल, क्या तुम स्वदूतों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो? Even I raised my hand up. Now here's the thing. अब सुनिए, So I started thinking, तो इन्होंने सोचना शुरू किया why would angels work with me? कि क्यों पर स्वदूत जो है मेरे साथ मिलकर काम करें। Hello. सुने, Look at somebody and say, why would angels work with you? किसी को देखकर कहे क्यों स्वदूत आपके साथ मिलकर काम करें। Point. Now here's the thing. सुनिए, And here's what I understood. और जो इन्होंने समझा, When you work or align yourself with his plans and purpose, जब आप अपने आप को उसके योजना और उद्देश्य के साथ जोड़ते हैं, you go where God is moving. आप वहां जाते हैं जहां परमेश्वर आगे बढ़ रहा है, You will meet angels. तब आपकी मुलाकात स्वदूतों से होगी। Come on. चलिए। प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे छोकरी दे। ठीक है, कितने लोग सुन रहे हैं? क्या गलत नहीं है, चाहिए, जरूरी है। प्रभु मुझे गाड़ी दे, साड़ी दे, दाढ़ी दे, पैजामा दे, जरूर। कम ऑन, नहीं जरूरी है, जरूरी है, लेकिन इसके लिए एंजल की जरूरत नहीं पड़ती भाई। सोचो ना, एंजल लेके आ रहा है पैजामा, बेटा ये क्रिसमस के लिए पहन, ये है क्रिसमस का पैजामा और ये है न्यू ईयर का पैजामा। एंजल पैजामा लेके आता है, क्या टेलर है क्या वो? Now, hello, are you listening? सुनिए। But now here is you are. लेकिन यहाँ पर आप हैं, You are praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं। Father, पिता, let your presence move upon Mumbai. तेरी उपस्थिति मुंबई शहर पर मंडराए। You know what God says? आप जानते हैं परमेश्वर क्या है? Angel, go take your name now. Go there. Hallelujah. अपना नाम लो, स्वदूत वहाँ जाओ। Because he's praying what is in my heart. Just go and teach him something right now. जाओ और जाकर उसको कुछ सिखाओ। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Hallelujah. Show him something about Mumbai. जाकर मुंबई शहर के बारे में कुछ Tell him to दिखाओ। pray in that direction. उस दिशा में प्रार्थना करने के लिए बताओ उसको। Suddenly angel appears in your room. और अचानक आपके कमरे में स्वदूत You प्रकट see होता in the night. है। आप देखते हैं रात में, Hello. You see in the night God speaking to you. आप देखते हैं रात में परमेश्वर आपसे बात करता है। You are praying for India. आप भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। God, holy God, have mercy upon India. पवित्र परमेश्वर भारत देश पर दया दिखा, And the Lord will show you something at the border. और फिर प्रभु सरहदों के बारे में कुछ दिखाएगा आपको। Come on, hello, are you there? It's happening in the east at the border. Hey, come on और now. पूर्व दिशा में जो है सरहद पे हो रहा है ये। Are you listening right now? I don't know. Chicken neck. Hello. No, sir, I'm speaking prophetically. भविष्यता तौर पे बोल रहे हैं। Yes, the border between Bangladesh and this thing and the chicken neck. Pray over there because there is going to be an army of perpetrators, mercenaries going to come in from there, and you start praying and that thing stops in Jesus' name. और फिर आप जब प्रार्थना You will करना hear शुरू it करते in हैं, वो the चीज़ news. वही रुक जाएगी यीशु के नाम में। You will hear it in the news. समाचार में आप You will सुनेंगे। hear it in the news in this week in Jesus' name. हफ्ते में आने वाले समाचार में आप सुनेंगे यीशु के नाम That's में। how angels work with you. इसी तरह से स्वदूत आपके साथ मिलकर काम करते हैं। Hello, are you listening right now? क्या साथ में हैं? Father, I pray for the body of Christ. अभी आप प्रार्थना मसीह की देह के लिए। Lord, raise up men of God, bless your people, and God will send his people, send his angels to strengthen you. The Bible says, Father sent angel to strengthen Jesus. और बाइबल ऐसा कहती है कि पिता ने स्वदूत को भेजा यीशु को सामर्थ देने के लिए। Hallelujah. Come on, somebody, hallelujah. चले गए हालेलुया। That's how you work with angels. इसी तरह से आप स्वदूतों के साथ मिलकर काम That's करते how हैं। angels will move with you. इसी तरह स्वदूत आपके साथ चलते हैं। Some of you will actually see angels. आप इसको दरअसल स्वदूत को देखेंगे। Some of you will experience angels. कुछ लोग जो स्वदूतों का अनुभव करेंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody open your mouth and shout hallelujah. कोई तो अपना मुंह खोले चिल्ला हालेलुया। There's a great man of God. परमेश्वर महाजन Oh, he was fasting for days. कई दिनों तक उपवास में थे। His name is Mahesh Chawda. उनका नाम महेश चावड़ा जी। Reverend Mahesh Chawda. रेवरेंड महेश चावड़ा जी। Hello. He was on a 40-day fast. 40 दिन के उपवास में थे। And he was about to get up
from the 40-day fast. और 40 दिन के उपवास से बस बाहर निकलने वाले थे And he was going on the stage. और वे मंच पर जाने वाले थे Come on. He's saying, Father, I feel weak. और उन्होंने कहा पिता मुझे बहुत कमजोरी महसूस And हुई then, and the Holy Spirit said, और Mahesh, तब मैंने कहा महेश I'm sending my angel मैं अपने स्वर्गदूत को भेज रहा हूँ to strengthen you. तुम्हें ताकत And देने he के लिए। writes that as I stood on the और stage, फिर उन्होंने लिखा कि जैसे मंच पे खड़े हुए demons would come out crying. और दुष्ट आत्माएं चीखते और निकलने लगी Witch doctors would fall on their knees and say, Jesus is Lord. तांत्रिक Hallelujah. लोग अपने घुटने पर आकर और कहने लगे यीशु ही प्रभु है Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? There was a tree और एक पेड़ था where they would do all their, come on now, hello. वहां पर जाके सारा अपने काम करते थे When Mahesh Chowdaji was preaching, जब महेश चावड़ा जी प्रचार कर रहे थे thunder and lightning fell on that tree और बिजली कड़कते हुए उस पेड़ पर गिरी and it became black fully. और पूरी तरह से वो काला हो गया All those fellows came and said, this man is moving with a powerful angel. और फिर सभी लोग आकर कहने लगे ये व्यक्ति जो है सामर्थ्यशाली स्वर्गदूतों के साथ मिलकर काम You करता see, है when you align yourself with what God is doing. देखिए जब आप अपने आप को उन कामों से जोड़ते जो परमेश्वर कर रहा है Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त That time God will release his angels. उस वक्त परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को जरूर मुक्त कितने लोग करेगा सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? Sir, you don't need to be somebody. देखिए आपको कुछ खास होने की जरूरत नहीं You है just need to say, God, I am going in your direction. बस आपको इतना कहना है कि परमेश्वर मैं आगे जा रहा हूँ आपकी दिशा में That's why Jacob came at the camp called Mahanaim and he says, this is the camp of angels. और इसी वजह से देखिए, Hallelujah. याकूब महनर में पहुंचा Hallelujah. और वहां पर उसने कहा यह तो स्वर्गदूतों की ही Shakatabau Zekere. Are you listening right सुन now? रहे हैं समय? Yes. Yes. That is how you work with angels. इसी तरह से आप स्वर्गदूतों के साथ मिलकर काम करते हैं Aligning yourself with the plans and purposes of God. अपने आप को परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के साथ जोड़ना And lastly, और आखिरी when you start praying for these areas, जब इन क्षेत्रों में के लिए आप प्रार्थना करना शुरू करते these 4 areas, हैं इन 4 क्षेत्रों के you लिए will see a spiritual awakening. आप आत्मिक जागृति को देखेंगे I was with a man of God yesterday, कल परमेश्वर जन के साथ थे and he was from Saudi Arabia. और वो सऊदी अरेबिया से Can I speak right now? He was from Saudi. सऊदी से है And he came and we were having dinner together. He was in the service. और वे सभा में थे And he says, man of God, और उन्होंने कहा he परमेश्वर told जन me, he said, we want you to come to this place. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप इस जगह I पे said, but it's closed. He says, not anymore. He says, we had our first Christmas celebration in Saudi. आए उन्होंने कहा कि हमारा पहला क्रिसमस का जो सेलिब्रेशन हो जा रहा है सऊदी में Come on, hallelujah. He says, I said, are you really serious? He says, yes. A prophet also came over there. उन्होंने बताया कि भविष्य भी वहां पर आए Hello, are you listening right now? I'm not to take names, no names. No names. And he was saying, there was a woman over there, an African woman. एक अफ्रीका की महिला For 5 years, she was interceding. 5 साल से वो Lord, send revival. प्रभु बेदारी को भेज Lord, send revival. प्रभु बेदारी भेज Lord, move upon this प्रभु place. इस जगह पे मंडरा Hello, are you listening right सुन रहे हैं now? आप इस वक्त? There are many churches over there. कई सारी कलीसियां हैं वहां पर Angels are moving, he said. स्वर्गदूत मंडरा रहे हैं People are seeing angels लोग वहां स्वर्गदूतों को देख रहे हैं in their homes. घरों में Spiritual awakening. आत्मिक जागृति It will happen. ऐसा होगा It will happen, church. ऐसा होगा कलीसिया Your son will say, आपका बेटा कहेगा come on, come on, come on, come on, come on. Can I share a testimony? क्या गवाहियों को बांट सकते Can हैं I share a testimony? There was a pastor whom I was, yesterday many pastors were there. कल बहुत सारे पासवान लोग आए थे बराबर मैं बोल रहा हूँ ना? हाँ, पूरा लाइन लगी थी. कितनी सारी गाड़ियां जा रही थी हमारे साथ में. और pastor जी ने मैं सब डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि I'm on the air. He said my family comes from. कितने लोग समझ गए? He said my father. उन्होंने कहा मेरे पिता He was a very important man. बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे He used to do all those things, सारी ऐसी चीजों को करते थे but he used to drink. लेकिन वो पीते थे Come on now, hello. Sing, इतना पीता था, सब कुछ दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा संत था. But he used to come and drink. He used to beat my mother. आके मेरी माँ को पीटते थे Come on, hello. So we used to pray for his salvation. हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते थे Long story short, लंबी कहानी छोटा कर दी one day एक दिन he got a stroke. उनको स्ट्रोक लगा They thought he would die. उन्होंने सोचा कि वो मर जाएंगे They took him to the hospital. हॉस्पिटल ले गए The doctor said, you are drinking alcohol. डॉक्टर ने कहा कि तुम शराब पीते हो You have to stop it. तुम्हें रोकने की जरूरत है Next day, अगले दिन he threw all his alcohol. अपना सारा शराब फेंक दिया उन्होंने Stroke went away. उनका जो दौरा पड़ा था वो चला गया He got saved.
उद्धार मिल गया, The whole family received salvation. पूरे परिवार ने उद्धार पा लिया। God can work in mysterious ways. परमेश्वर रहस्यमय तौर पे काम कर सकता है। Hallelujah. Revival will come in your home, in your family, in your city, in your nation. और बेदारी जो है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके देश में आएगा। जहां पर मार काट पॉकेट मारी होती थी, वहां पर गॉस्पेल चलेगा। हालेलुया। वहां पर वर्शिप चलेगी। हालेलुया। Because of your praise. आपकी प्रार्थना की वजह से, Because of your praise. आपकी प्रार्थना की वजह से Today, आज there shall be a great awakening ऐसे बड़ी महान जागृति in आएगी the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में। How will it come? कैसे ये होगा? It will come through you. आपके जरिए आएगा। Look at somebody and prophesy through you, my brother, through you, my sister. मेरी बहन, मेरे भाई, आपकी Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Somebody begin to say, thank you, Jesus. Lift your hand and pray right now. Are you going to obey the call of the Holy Spirit today? क्या आप पवित्र आत्मा की बुलाहट का पालन करने जा रहे हैं? How many of you are saying yes? आप इसकी तरफ कह रहे हैं? I will pray for my family daily. मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा I will रोज। pray for the body of मैं Christ. मसीह की देह के लिए प्रार्थना करूंगा। Yes, you are in Karuna Southern Ministry. You will pray for the body of Christ. You will pray for every service. God, Holy Spirit, pour out upon this या service. करुणा से सेवकाई में आपको प्रार्थना करने की परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हर एक सभा में उंडेल दे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। You will pray for the city and the nation. आप प्रार्थना करें राष्ट्र के लिए, शहर के लिए। You can use a map. Hallelujah. आप नक्शा ले सकते हैं। Come on, come on, come on. Hallelujah. कब कोई लोग मैप डेकोरेशन के लिए रखते हैं, मसीह लोग जो है प्रार्थना के लिए मैप रखते हैं। Hallelujah. जोर से बोलिए praise the Lord. जय प्रभु की स्तुति हो। And lastly you will pray और आखिर में आप प्रार्थना for करेंगे good leadership. अच्छे नेता पर अगुवापन के Oh, लिए। अगुवेपन के लिए. Hallelujah. I like the word अगुवेपन. Hallelujah. प्रभु ऐसे अगुवे को तैयार करेगा. I'm telling you. On Saturday I was prophesying over an IAS officer. शनिवार को एक आईएएस ऑफिसर पे ये भविष्यवाणी कर रहे थे। I told him, मैंने कहा I'll not take the names. नाम नहीं लेंगे। God has called you as a Joseph. परमेश्वर ने आपको बुलाया है यूसुफ के He's a साथ। very humble man. बड़े नम्र व्यक्ति हैं। I love him. प्रेम करते हैं उसे। Praise the Lord. Hallelujah. I'm telling you, sir. कह रहे हैं आपसे। He wrote back to me. Thank you for blessing us. उन्होंने लिखते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। Your life can touch many people. आपकी जिंदगी बहुतों को छू सकती है। Praise the Lord. Hallelujah.